much is gasoline, petrol in India? It is expensive than China. Expensive than Yeah. China? Yeah. Like here it is. How much here? Like Here is 8 yuan, I think. 8 yuan liter, for diesel. for gasoline. For gasoline, like LPG. Yeah. LPG, right? So not LPG, LNG, right? LNG. There was LNG. That is gas petrol. For petrol is 8 yuan. 8 For something. petrol, 8 yuan. Yeah. Okay, so 8 yuan in 8 yuan Indian rupees, it would be at 80, 800, 16, 96, 96 rupees liter Indian rupees. Oh, it's same. Say, Yeah. And for diesel, diesel is 6 yuan something. 6 yuan. So okay, Yeah. so Indian rupees, it is little expensive. Like in India, it is little expensive. Here, it is cheaper. So like in India, it would be around 7.5 yuan. Yeah. And for the gas. I don't know the gas. I never tried the gas. Okay. Maybe 2 yuan, 3 yuan. Oh, it is very, very cheap. Yeah. Because in India, it is around 6 yuan. Yeah. Oh, gas is expensive in India. Yeah. Okay. Earlier, it was very cheap, very, very cheap. Like earlier, it was only 2 yuan, you can say. Yeah. 2 or 3 yuan, but now it is very expensive. And it, there is drastic increment. Because in 2 years it went from 2 to 6 in only 2 years. सही है भाई, यहाँ पर जो फ्यूल के प्राइसेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है. बट एलपीजी में थोड़ा सा डिफरेंस लगा मेरे को. एलपीजी सॉरी, जो गैस है बेसिकली, जो हमारे यहाँ सीएनजी होते हैं, इनके यहाँ एलएनजी होती है. तो बेसिकली सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो इनके यहाँ एलएनजी होती है. एलएनजी इज लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नेचुरल गैस, राइट. But in Kazakhstan, petrol is, water is expensive than petrol. Oh. In Kazakhstan. Water is expensive than petrol. Yeah, in Kazakhstan. Okay. Well, in Kazakhstan, 1 liter. Like what do you mean to say? Like water is expensive or the fuel is cheaper? Water is expensive. 1 liter water is expensive than the petrol. How much it is? For example, In Chinese yuan, how much it would be? petrol is 2-3 yuan in Oh. Kazakhstan. 1 liter. And diesel? I don't know diesel. So obviously it would be Yeah, cheaper. cheaper, yeah. Oh, okay. Kazakhstan में बहुत सस्ता डीजल मिलने वाला Water है. is 5-6 yuan in Kazakhstan. Oh, 5-6 yuan. Okay. In here as well it is 3-4 yuan, right? Water, yeah. Water is cheap. Oh. सही है भाई, मतलब डीजल सस्ता मिलना है कजाकिस्तान में. है भी बहुत बड़ा यार, बहुत ज़्यादा ड्राइव करनी है. चलो फुल हो जाएगी टैंकी 1-1.5-2 हज़ार में, फिर तो मज़ा आ जाएगा. You cross through the Kyrgyz border, you probably see they're shipping electronic cars to Kazakhstan. ओके भाई, इन्होंने भी मुझे बताया कि जो चाइना में इलेक्ट्रिक कार्स सस्ती हैं. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक कार्स आर चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल कार्स Yeah. इन चाइना. Yeah. Oh, like But how if much you- difference? If you ship it to Kazakhstan, Obviously it will get little bit. tax free, custom tax free. Okay. So that's why nowadays they are starting to drive some Chinese electronic car because the In price- Kazakhstan. Yeah, because price is low. Okay. Like how much difference is there? Like if we talk about only China, okay. So if the petrol or diesel any car is 200,000, Yeah. basically 2 lakhs of yuans. So how much it would be if it is an electric car? Like how much difference is there? Man, nowadays they are making electronic car like amazing, man. Like a furniture inside is amazing, but and for example, you can buy electronic. No, I'm asking about the price difference. Prices for a good electronic car, you can buy 100k. 100K? Yeah, 100 something k. Okay, 100K आपका इंडियन रुपीज में हो गया भाई 12.5 लाख रुपए. Okay, good electronic car, right? Yeah. And the cheapest one? Cheapest one, 50k, 60k. 50K? You can find some cars. It is very cheap. In India, electric cars, like we get electric cars in 200K or you can say 250K, but good electric car if you want, then you must have around 300,000K in your bank account. So it is expensive. So this Mahindra also make electronic. No, yeah, Mahindra have electric cars. Recently they launched. It is basically it will give a view of a sports car. Oh, there is no internet. Maybe later. Yeah. अब देखो ये चीज़ें हैं ना, ये मैं इंटरनेट पे सर्च करूँगा, R&D करूँगा बैठ के, तो वो चीज़ें तब पता चलती हैं. बट अगर आपके साथ ऐसी कोई लोकल हो ना, तो उसमें फिर क्या होता है कि तुरंत आपको 10 चीज़ें, जितनी देर में आप एक चीज़ सीखोगे उतनी देर में आपको 10 नॉलेज मिल जाएंगी 10 चीज़ों के बारे में.
तो ये फायदा होता है भाई लोकल के साथ. So I'm just telling my subscribers that it is a benefit that if you're traveling with a local, so you'll get to know so many things from that country. Yeah. Yeah, obviously, yeah, it's true. I'm telling you 10 things, you're telling me 10 things, so we are both, you know, just communicating, so it helps each other. भाई यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बोर्ड लगे हुए हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के. तो मैंने इनसे ऐसे ही पूछा कि चाइना में ड्रिंक एंड ड्राइव के रूल्स किस तरीके के, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है कि कम है. तो इन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. अगर सिर्फ आपने एक बॉटल पी है बियर की, ठीक है, तो एक बॉटल बियर की ड्रिंक एंड ड्राइव में आप लोगों को 6 months of jail in one beer bottle, right? Yeah. Oh my god, 6 months of jail. Yeah. And no one can save you, right? No one. And what if someone is heavily drunk? That's like, oh my god, it's like 2-3 years. You don't know, man. Oh. Even longer time, man. Even if I didn't had any accident or no mishappening happened with me, I'm just driving and they just caught me. Yeah, if you're like really drunk, it's about 3 years. Oh my god. 3 years in jail. Yeah. Rules are very strict here in China. हमारे इंडिया में तो भाई देखे मैंने लोग ऐसे 500 की पत्ती पकड़ाते हैं, 1000 की पत्ती पकड़ाते हैं, निकल जाते हैं. लेकिन इंडिया you know आई थिंक मुझे नहीं बताना चाहिए. नो नथिंग लेट इट बी. ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं बाहर ऐसे बताते हो तो नहीं बताना चाहिए. बट ठीक है, मतलब इन चीज़ों को लेकर ना रूल स्ट्रिक्ट होने चाहिए इंडिया में भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए. क्योंकि जो मिसहैपनिंग्स वगैरह होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो इन्हीं रीज़न की वजह से होते हैं क्योंकि लोगों को इतनी लिबर्टी मिली हुई है कि भाई उनको पता है कि अगर किसी ने पकड़ा भी तो उनको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. उनको पता है कि हाँ भाई थोड़े मोड़ा दे के छोड़ जाएंगे. तो इस चीज़ को लेकर ऐसे रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए. खासकर जो रोड के रूल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए. ठीक है, तो यही था. अभी ऐसे बात करते चल रहे हैं ऐसे छोटे बड़े टॉपिक्स पे. सामने चेक पॉइंट आ गया भाई, आज का हमारा पहला चेक पॉइंट. वैसे हमारा चाइना मेनलैंड का दूसरा चेक पॉइंट. पहला चेक पॉइंट मैंने अकेले क्लियर किया था. इस वाले चेक पॉइंट पे मैं मेरे साथ हैं चाइनीज़ गाइड, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही उनसे बात करूँ. कैन आई टॉक टू देम लाइक टू चेक पॉइंट? आई थिंक आई शुड ट्राई, राइट? तो फिर एक बार मैं देखता हूँ. और बाकी यहीं पर फ्यूल स्टेशन भी है. मेरे पास फ्यूल है अभी लगभग 350 किलोमीटर के डिस्टेंस का, बट मैं सोच रहा हूँ डलवा ही लेता हूँ यार, अभी डलवा के ख़त्म करते हैं. डू दे हैव डीजल? Did you see the left one, the red one? Yeah. I think that's the gas station. Yeah, I think they got diesel. Yeah. Diesel, right? तो यहाँ पर is it open or closed? It's open, right? Oh yeah, this one is also diesel. Open, right? Not. Oh yeah. Okay. Here. I think it is open, but what about that one? No. No, this is the. Oh, checkpoint. this is a checkpoint. So okay. Okay. यहाँ पर तो गाड़ी रुकवा ली है भाई. इन्होंने बोला साइड में लगाओ जरा. पासपोर्ट लेके अंदर गए हैं और बोला कि साइड में लगाओ. देखते हैं क्या होता है, बताता हूँ आपको, अपडेट करता हूँ. बाकी शूट नहीं कर सकता हूँ ऑब्वियसली. चेक पॉइंट तो क्रॉस कर लिया हम लोगों ने. सामने ये टोल है. अब टोल क्रॉस करता हूँ, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ चेक पॉइंट का. इस बार थोड़ा सा अलग, थोड़ा तो नहीं बहुत अलग रहा मेरा तो एक्सपीरियंस भाई चेक पॉइंट का. और आई एम ग्लैड भाई कि मेरे साथ अभी 2 गाइड हैं या फिर 2 चाइनीज़ पीपल हैं, वरना आज बैंड बज जाती है यहाँ पे. ये टोल देखते हैं कितने का है, क्योंकि यहीं पर इज दिस द ओनली वन टोल ऑन दिस रूट और वी विल फाइंड मैनी? Probably a few, yeah. No, probably few more. Okay, चलो भाई. चाइनीज नंबर प्लेट देनी पड़ेगी यहाँ पर, उसी से ही टोल कटेगा. So are they going to give us the card or something, or we have to just pay? Something like that. Oh yeah. Okay. We need to pay, right? Okay, how much? कार्ड वाला सिस्टम यार मैंने सिर्फ वहीं पर ही देखा. 25 you got cash. 25 yuan. Yeah, there it is. 25 yuan का टोल था भाई. 25 yuan आपके हो गए इंडियन रुपीस में 250 एंड 50, 300 रुपये का टोल. 300 तो चलो ठीक है. अब देखते हैं कितने किलोमीटर तक का टोल है ये 300 वाला. So like what did they ask at checkpoint? Where you from? Okay. Where are we heading to? Where are we heading to? State. Okay. All these things, right? Yeah. And nothing else. Drive safe. Okay. But what if I was alone? Same question. Same question. Okay. If I would be alone, then he should call me and maybe ask some questions maybe. No. No? No. Okay. It will be a little bit difficult for you because that guy doesn't understand English, obviously. You need to translate and something like that. वही है भाई. चलो ठीक है, अब है साथ में तो फिर आसानी हो गई. मुश्किल से ज़्यादा टाइम नहीं लगा. मैं it took only 3 to 4 minutes, right? Yeah. तो 3 से 4 मिनट लगे बस ये अपना चेक पॉइंट क्रॉस करने में. एंड वी हैव मोर चेक पॉइंट्स ऑन दिस रूट. Yeah. ओके. Hami. ओके. Hami, and also when we get into Orki. ओके. बेसिकली हाईवे पूरा स्ट्रेट नॉर्मल है. जैसे ही आप किसी प्रोविंस की किसी मेजर सिटी में एंटर करते हो तब वहाँ पर आप लोगों को
एंटर करते टाइम पे चेक पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर अपनी डिटेल सारी देनी है। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट की फ़ोटो खींची, मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट की फ़ोटो खींची, गाड़ी की नंबर प्लेट खींची, मेरी खींची और रख ली फ़ोटो। ठीक है, अब आगे कुछ देखते हैं जो होगा, आगे के चेक पॉइंट का एक्सपीरियंस वो भी शेयर करूँगा आपसे। तो भाई अभी इन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली चाइना में ना 3 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, 3 टाइम जोन्स कहाँ गया है। तो सबसे पहले तो आ जाता है बीजिंग का टाइम, जो मेनलैंड चाइना का टाइम है। उसके अलावा फिर सेकंड आ जाता है भाई आपका शिनजियान का, जहाँ आज हम लोग जा रहे हैं। तो बेसिकली अभी तक मुझे लगा था कि 2.5 घंटे का जो डिफरेंस है ना इंडिया से, वो पूरे चाइना में सेम रहने वाला। बट एक ही कंट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है ऑब्वियसली। यूएसए में भी बहुत टाइम जोन्स हैं, कनाडा में भी हैं, रशिया में भी टाइम जोन्स चेंज होते हैं। ठीक है, बट चाइना में भी होते हैं, ये नहीं पता था मुझे। तो 2.5 घंटे अभी बेसिकली हम अहेड हैं, मतलब आगे हैं इंडिया से। ठीक है, बट जैसे ही अभी हम शिनजियान प्रोविंस में जाएंगे तो वहाँ पर 2 घंटे पीछे हो जाएंगे चाइना के टाइम के हिसाब से। तो मतलब अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो आज मैं जहाँ पहुँचूंगा वहाँ पर मैं सिर्फ आधे घंटे आगे रहूँगा। तो ये चीज़ काफ़ी सही हो जाएगी, इंडियन टाइम के हिसाब से हो जाएगा। और रशिया का एक और टाइम जोन है, जो अपना चाइना का नॉर्दर्न पार्ट है, जो रशिया के आसपास आता है। तो that has a difference of how many hours? Maybe 2 hours ahead of Beijing. You're not sure, right? I'm not sure. Okay, so मतलब probably 2 hours का difference है बीजिंग टाइम के हिसाब से। तो वो हो गया लगभग, हाँ वो ahead है, it is ahead of 2 hours, right? So in total that if I'll go to the northern part of China, I will be 4.5 hours ahead of India, you know? Yeah, probably. Yeah, because right now I'm 2.5 hours ahead. ऐसा difference आ जाएगा। ओके नाइस, तो ये अभी पता चला मेरे को, मैंने कहा आपको बताना सही है। और जब मैं कजाकिस्तान इज सेम टाइम फ्रॉम शिनजियान, राइट? 3 hours. Kazakhstan is 3 hours. ओके, Behind Beijing time. behind Beijing time. Okay, then I will be half an hour ahead of, half an hour behind Indian time when I'll reach Kazakhstan. Okay. ओके ठीक है भाई, मतलब काफ़ी टाइम जोन्स चेंज होंगे भाई अगले, ये मान लो 4 से 5 दिन में सिर्फ, बहुत सारे टाइम जोन्स। अभी मैं 2.5 घंटे आगे था। ठीक है, अब मैं आज रात को आधे घंटे आगे हो जाऊंगा। फिर जब मैं कजाकिस्तान एंटर करूंगा तो मैं आधे घंटे पीछे हो जाऊंगा। फिर रशिया जाऊंगा तो फिर मैं 3.5 या 4 घंटे के पीछे हो जाऊंगा। फिर यूरोप में वही 3.5 घंटे का डिफरेंस है। यूके में शायद डिफरेंस बढ़ जाता है दिसंबर के मंथ में, हाँ डिफरेंस बढ़ जाता है। वहाँ पे भी यूके में भी 2 टाइम जोन है, समर और विंटर के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो चलो वहाँ की वहाँ देखेंगे, अभी के लिए जो बताना था।